नमस्कार बच्चों in our last class we have seen the cloud computing and how the cloud computing is effective. In this chapter we are understanding the cloud services provided by the cloud computing. Okay, so a better way of understanding the cloud is very interpreted in everydays as a service. A service correspond to any facilities provided by the cloud. There are three standard models to categorize the different computing services delivered by the cloud. The first ever cloud service is infrastructure as a service, or in short it is also known as IaaS. Okay, in infrastructure as a service, provider can offer the different kind of computing infrastructure such as server, virtual machines, storage, backup facility, network component, operating system or any other hardware और सॉफ्टवेयर यूजिंग. मतलब बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग में जिस तरह से दैट एक पर्टिकुलर क्लाउड होता है और ऑन विच वी आर जस्ट शेयरिंग द थिंग्स. तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये कई सारे अकॉर्डिंग टू द सर्विस प्रोवाइडिंग ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से सबसे पहला है आपका आई आस. ठीक है, आई आस स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जहाँ पर आपको बच्चों स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ एक स्टैंडर्ड सर्विस ओवर टू द नेटवर्क प्रोवाइड कराई जाती है. IaaS provides the computational infrastructure, physical or virtual machines like servers and other resources like virtual machines, disk image libraries, blocks and file-based storage, firewalls, load balancers, IP addresses, virtual local area networks and so forth. So the customer would typically deploy his own software on the infrastructure. If I'm talking about the particular example of IaaS, देन आप बोल सकते हो जैसे अमेजन्स का EC2, विंडो का अजूरी, रैक स्पेस, गूगल कंप्यूट इंजन एक्सेट्रा. ठीक है बच्चों, ये वो सारे सॉफ्टवेयर है जो आपको सच काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. यूजिंग IaaS from the cloud, a user can use the hardware infrastructure located at the remote location to configure, deploy and execute any kind of software application on that particular cloud infrastructure. ठीक है बच्चों, so this is your IaaS service. Now next is PaaS. PaaS. PaaS stands for platform as a service. Through this service बच्चों a user can easily install or execute any application without worrying about the underlying infrastructure and their setup. That is, PaaS provide a platform actually or environment to develop, test and deliver the software application. जैसे सपोज करो बच्चों आपका पास पाइथन है. अगर आप पाइथन के कोड्स को आपके पास मान लो कंप्यूटर है और कंप्यूटर के ऊपर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो पाइथन का ऑब्वियसली आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए. बट यू डू नॉट हैव द स्पेसिफिक पाइथन दैट सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर. देन यू जस्ट गो टू द वेब, और वेब पर जाने के बाद आपको कई सारे पाइथन के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे. पर्टिकुलर वेबसाइट्स होती है बच्चों जहाँ पर आपको पाइथन का प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराया जाता है, जहाँ पे आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करके भी चला के देख सकते हो. ओके बच्चों, तो एक तरह से ये क्लाउड्स के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड दैट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सर्वर्स के ऊपर आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देते हैं. ठीक है, सिंपली इन पास द यूज़र हैज़ द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिप्लॉइंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन. It provide a development environment for the developers as a much reduced cost and lessening the complexity of buying and managing the underlying hardware and software. Suppose करो बच्चों that particular एक software designer है who is not able to purchase that particular software जिसको चलाकर वो अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को पूरा करता है, एक पर्टिकुलर कोड करता है. अगर वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ख़रीदने में अनेबल है तो जो क्लाउड की PaaS सर्विस हैं, प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं, उनको यूज़ करके वो आसानी से वर्क कर सकता है. ठीक है बच्चों,
सिंपली यहाँ पे आपको वेरियस प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट्स मिलते हैं जिस पे आप आसानी से अपने कोड को डेवलप कर सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट मीन्स एग्जीक्यूट करके उसको रन कर सकते हो, और उनके कोड को डेवलप करके डिलीवर भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। ओके बच्चों, दिस इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड द लास्ट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की थर्ड पार्ट है। That is, software as a service in SaaS provide us the on-demand access of an application software which usually require a licensing or subscription by the user. Just like बच्चों गूगल डॉक, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है हमारा MS ऑफिस, उसके अंदर हमें MS वर्ड मिलता है बच्चों, पावर पॉइंट मिलता है। These all softwares are payable. MS एक्सेल मिलता है, ये सारे सॉफ्टवेयर बच्चों हमारे पेएबल हैं। पेएबल मीन्स वी हैव टू पे फॉर इट इफ़ यू वांट टू यूज़ देम। सो ऑब्वियसली जब हमें पे कर पाएंगे तभी हम इन्हें यूज़ कर पाएंगे, और बच्चों ये बहुत ज़्यादा कॉस्टियर भी होते हैं। तो रादर देन जस्ट यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर्स ऑफ द इन पेएबल मोड, वी आर जस्ट यूजिंग द इंटरनेट to use the particular kind of software which comes under the SaaS service, software as a service। जैसे गूगल डॉक आपका क्या करता है बच्चों? गूगल डॉक आपका बिल्कुल वही सेम काम करता है जो आपका ऑलमोस्ट MS वर्ड करता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपका ड्रॉप बॉक्स है, अब गूगल डॉक हो गया आपकी दैट ऑनलाइन स्प्रेडशीट क्रिएट होती है थ्रू द दैट गूगल शीट्स, ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए होता है और एक अपना अकाउंट आईडी चाहिए होता है। उसके अलावा आपको और तीसरी किसी भी तरह के अदर सॉफ्टवेयर को परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अ यूज़र इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सच सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप उसे डायरेक्टली यूज़ करते हो, मीन्स आपको उन सॉफ्टवेयर्स को ना तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है अपने कंप्यूटर के ऊपर, और ना ही आपको किसी अदर एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। आप डायरेक्ट उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करते हैं पास से इससे साथ से रिलेटेड, तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हम लोगों का बच्चों टाइम और मनी दोनों ही बच रहा है। इवन अब आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपको खुद को भी अपने कंप्यूटर पे स्टोरेज चाहिए होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर पे ही सेव होगा, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में भी आपको मेमोरी चाहिए होगी। यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है वो सारा का सारा इंटरनेट पर हो रहा है, तो और इंटरनेट पे क्लाउड स्टोरेज अपन को अवेलेबल होता है जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक जाके सेव हो जाते हैं। तो बच्चों इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है, ठीक है। आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका बच जाता है, ठीक है। ये आपको एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो दिस इज SaaS सर्विस। नाउ आई एम जस्ट जंपिंग ओवर टू द ग्रिड कंप्यूटिंग। बच्चों ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? ग्रिड कंप्यूटिंग एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग that involves the coordination and sharing of geographically distributed network computerization resources। जो बच्चों कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर्स की वर्किंग एबिलिटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो सिस्टम्स होते हैं बच्चों उनको सेवरल जियोग्राफिकल लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे सपोज़ करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो बच्चों क्लास के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कराना है, तो इंस्टीड ऑफ गिविंग दैट टास्क टू अ सिंगल स्टूडेंट, आई एम जस्ट मॉड्यूलराइजिंग दैट टास्क। मैं उस टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में क्रिएट कर देता हूँ और उन मॉड्यूल्स को डिफरेंट स्टूडेंट के ग्रुप बनाकर या इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा देता हूँ इंडिविजुअल टास्क। चूँकि मेरे को एक ओवरऑल टास्क को कंप्लीट कराना था, तो ओवरऑल टास्क को कंप्लीट कराने के लिए मैंने उस पर्टिकुलर टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को वो सप्लाई कर दिया कि बच्चों ये इंडिविजुअल आपको टास्क करना है। अब ऑब्वियसली कि अगर सपोज करो मैं एक बिग टास्क बच्चों को दे देता तो डायरेक्टली उन बच्चों के लिए वो बिग टास्क बहुत ही हैवी हो जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर उनको थिंक और लर्न करने में समय लगता है। बट रादर देन आई एम गिविंग द बिग टास्क, मैंने उस पर्टिकुलर टास्क को स्मॉल चंक्स
या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कि हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास जो लर्न और थिंक करने का जो क्राइटेरिया है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए है, तो इट दैट पर्टिकुलर टास्क कैन इजीली बी सॉल्व। जैसे सपोज करो बच्चों, मैं एक प्ले कार बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि बच्चों अपन को एक प्ले कार बनानी है रिमोट कंट्रोल्ड, ठीक है। तो अगर मैं एक ये पर्टिकुलर प्ले कार का जो टास्क है वो सभी बच्चों को एक साथ ही दे देता हूँ, तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत कुछ दैट स्टफ रहेगा सोचने के लिए। लेकिन अगर मैं इसी पर्टिकुलर को दैट टास्क को डिवाइड कर दूं कि जैसे ग्रुप ए उस कार का रिमोट सेंसिंग पे काम करेगा, ग्रुप बी अलाइनमेंट पे काम करेगा, ग्रुप सी दैट पर्टिकुलर कार का डिज़ाइन तैयार करेगा, ग्रुप डी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, हार्डवेयर क्रिएट करेगा, ठीक है, ग्रुप ई उसके सॉफ्टवेयर पार्ट पे काम करेगा। तो अगर इस तरह से मैं वर्क डिवाइड कर दूंगा तो अ पर्टिकुलर ग्रुप विल डेडिकेटेडली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ द एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग ग्रिड कंप्यूटिंग अराउंड अस, जो कि हमारे इंटरनेट और नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड करी जाती है, सेटअप की जाती है। ओके बच्चों, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।